Hello students, good morning to all. Okay, so in last class, as you know, we described two small but important structures. First of them was spirosomes and next was microbodies that included peroxisomes and glyoxysomes. Okay, so I hope you understood all the discussion that we did in last class about these two things. As far as this class is concerned, we are going to deal with a very well known and a very important structure belonging to all different types of living cells, that is ribosomes. Okay, why I am saying this structure belongs to all different types of living cells? Because you know that ribosomes are common organelles to eukaryotic as well as prokaryotic cell. So just write this thing as the first thing, that these organelles are common to both prokaryotic as well as यूकैरियोटिक सेल, है ना. नाउ राइबोसोम्स were discovered by Robinson and Brown in plants, while they were discovered by a scientist called Palade, okay, in animals. Get the things correctly. प्लांट्स में राइबोसोम्स की डिस्कवरी की थी रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने, जबकि एनिमल सेल्स में राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था पैलेड ने. और राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो दोनों तरह के सेल्स के लिए कॉमन है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है. नाउ डिस्क्रिप्शन का जहां तक सवाल है, ribosomes are naked or say non-membrane bound ribonucleoprotein structures which are primarily involved in protein synthesis. See this description, it is very crucial to the understanding of ribosomes. Okay, what is written? कि ribosomes are naked. See this, naked or non-membrane bound. So why ribosomes are called naked or non-membrane bound? Because अभी तक हमने जितने भी ऑर्गेनल्स पढ़े उन सब में एटलीस्ट एक सिंगल मेम्ब्रेन थी, या वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड तो थे, नेकेड नहीं थे, नॉन कवर्ड नहीं थे. बट राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, या राइबोसोम्स एक ऐसे ऑर्गेनल्स है जिनके सरफेस पे या जिनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन या कवरिंग नहीं होती. नो बायोमेम्ब्रेन कवर इज प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ ribosomes. They are therefore called non-membrane bound or naked organelles. And what are they chemically? So as we have previously described it in prokaryotic cell, the description will not differ here. कि they are ribonucleoprotein structures, means they contain two components only. Which two components? So ribonucleoprotein stands for rRNA, that is ribosomal RNA, and
राइबोसोमल प्रोटीन्स। सिर्फ इन्हीं दो कंपोनेंट्स का मिलकर, प्रोटीन्स और आरआरएनए, सिर्फ इन दो कंपोनेंट से बना हुआ होता है राइबोसोम। इसीलिए इन्हें हम नेकेड, क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और आरएनए और प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं, हम इन्हें कहते हैं राइबोसोम्स आर नेकेड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर्स। और किस काम के लिए ये जाने जाते हैं या कौन सा फंक्शन ये कैरी आउट करते हैं? तो दे आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ये एक कॉमन वेल नोन फंक्शन है राइबोसोम्स का। चाहे वो किसी भी सेल में हो, राइबोसोम्स हमेशा कौन से काम के लिए जाने जाते हैं या कौन सा काम कैरी आउट करते हैं? तो इट इज प्रोटीन सिंथेसिस। जनरल डायमेंशंस की बात अगर हम करें, या इसी फंक्शन की वजह से हम इन्हें कहते हैं हेंस कॉल्ड प्रोटीन फैक्टरीज। ये क्वेश्चन के लिए लिखा है यहाँ पे कि प्रोटीन फैक्टरीज सेल के अंदर प्रेजेंट कौन से स्ट्रक्चर को कहा जाता है? इट्स ऑलवेज राइबोसोम्स। इज इट ओके? जनरल डायमेंशंस की अगर हम बात करें, ओके, तो राइबोसोम्स आर अबाउट 200 to 300 एंगस्ट्रॉम्स इन लेंथ। एवरेज लेंथ या एवरेज डायमेंशंस में लेंथ लगभग कितनी होती है? 200 से 300 एंगस्ट्रॉन्ग। एक एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब मैं तुमको बता चुका हूं पहले भी, 10 to the power -10 मीटर। कितना छोटा है आप अंदाजा लगा लो। 10 to the power -10 मीटर मीन्स 1 एंगस्ट्रॉन्ग, and the length of ribosomes is in the range of 200 to 300 angstrom. Similarly, the width or say diameter is around 150 to 170 angstrom. जो diameter है, average diameter मतलब width कह सकते हो आप, वो around 150 to 170 angstrom है, जबकि length is around 200 to 300 angstrom. Is it okay? These are what? The general dimensions of ribosomes. Now, number of ribosomes vary cell to cell. It can be few hundred to several thousands per cell, depending upon function of that cell. फिर से वही बात, ज़रूरी नहीं कि हर तरह की सेल में राइबोसोम एक कांस्टेंट नंबर में पाए जाए, ठीक है? राइबोसोम्स का नंबर या उनका अबंडेंस सेल टू सेल वैरी करता है। वो कुछ 100 राइबोसोम्स से कई हज़ार राइबोसोम्स तक हो सकता है। डिपेंड करता है कि जिस सेल में वो राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो सेल कौन से टाइप का फंक्शन कैरी आउट करती है। जैसे कंटिन्यूसली हार्मोन्स बनाने वाली या कंटिन्यूसली काम करने वाली अगर सेल होगी, जैसे मसल सेल है, एंडोक्राइन ग्लैंड की सेल है, तो उनमें राइबोसोम्स की क्वांटिटी नो डाउट ज़्यादा रहेगी, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस एक्सटेंसिवली होता है ऐसी सेल्स में। लेकिन जो सेल्स डॉर्मेंट है या जो सेल स्टोरेज जैसे फंक्शन में काम करती है, उनमें प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा रैपिडली या बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली नहीं होता। तो जाहिर सी बात है, अगर राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के फंक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, तो जिन सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस एक्सटेंसिवली होता है उन सेल्स में आपको राइबोसोम्स ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे, और जिनमें कम होता है या नहीं होता ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस, उनमें राइबोसोम्स की मात्रा कम होगी। राइट नाउ
राइबोसोम्स वैसे तो सभी तरह की सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह मैच्योर ह्यूमन आरबीसी डू नॉट कंटेन राइबोसोम्स। बाकी ऑर्गेनल्स की तरह मैच्योर ह्यूमन आरबीसीज में कौन नहीं होते, राइबोसोम्स भी नहीं पाए जाते। विथ दिस एक्सेप्शन all other different eukaryotic and prokaryotic cell contains ribosomes within them for sure, and each ribosome is made up of two chemical components, as you can see, rRNA and proteins, and none of the ribosomes is membrane bound. All of them are naked or non-membrane bound, and all of them are involved in the process of protein synthesis. Is it okay? Now we need to cut this because we need to discuss some other facts about ribosomes. Okay. Ribosomes are always measured in their densities. राइबोसोम्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है वो हमेशा डेंसिटी का यूनिट होता है, एंड it is measured, means density is measured in Swedberg unit indicated by capital S. ठीक है ना। राइबोसोम्स की डेंसिटी जो गिनी जाती है या मेजर की जाती है वो हमेशा कौन से यूनिट में मेजर की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थिंग, स्वेडबर्ग यूनिट, जिसको इंडिकेट किया जाता है बाय लेटर कैपिटल एस। जैसे हम ग्राम के लिए जीएम लिखते हैं, केजी के लिए केजी लिखते हैं, है ना। प्रेशर का यूनिट हो तो किलो न्यूटन लिखते हैं, लेंथ का यूनिट हो तो मीटर लिखते हैं, स्पीड का यूनिट हो तो मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, हर चीज़ का यूनिट होता है। उसी तरह से राइबोसोम्स की मेजरमेंट डेंसिटी में की जाती है, और डेंसिटी को गिना जाता है स्वेडबर्ग यूनिट्स में, जिसको इंडिकेट किया जाता है कैपिटल एस लेटर से, ये याद रखना। देन फंक्शनल राइबोसोम्स। अब फंक्शनल राइबोसोम्स से मेरा मतलब है वो राइबोसोम्स जो प्रोटीन सिंथेसिस कैरी आउट करते हैं, उनको हम फंक्शनल राइबोसोम्स कहते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शनल राइबोसोम्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स। आप जानते हो, ये नई बात नहीं है, फिर भी 70S एंड 80S। फंक्शनल राइबोसोम्स जो है अलग अलग सेल्स में पाए जाने वाले, वो दो तरह के हैं प्राइमरीली, 70S एंड 80S। अब इनके बारे में खास बात क्या, तो these ribosomes are found in, ये हो चुका है इसलिए फिर से एक बार हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स, जबकि इनके लिए क्या कहना पड़ेगा, these ribosomes are found only in eukaryotic cells. See this point, very important. जो 70S टाइप का फंक्शनल राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह की सेल्स में मिल जाएगा, लेकिन जो 80S राइबोसोम है वो सिर्फ और सिर्फ
यूकैरियोटिक सेल्स में ही मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव ATS टाइप ऑफ राइबोसोम एवर। इज इट ओके? नाउ अगर हम पर्टिकुलरली यूकैरियोटिक सेल की बात करें, क्योंकि हम यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, तो अगर हम पर्टिकुलरली यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो लोकेशन वाइज, ओके, और से ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, विद इन यूकैरियोट्स ribosomes are found in two locations. यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स दो लोकेशंस पे आपको मिलेंगे। पहली साइटोप्लाज्म और दूसरी within organelle like mitochondria and chloroplasts। देखो क्या लिखा है, यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स जो है वो दो जगह पे पाए जाते हैं। एक साइटोप्लाज्म में, कहाँ साइटोप्लाज्म में? तो साइटोप्लाज्म में ओवर सरफेस, इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं हम, ओवर RER, याद करो, कॉन्सेप्ट जोड़ो सारे जो अभी तक पढ़े हैं। हमने पढ़ा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज इट हैज राइबोसोम्स ओवर इट्स सरफेस। तो अब कॉन्सेप्ट जोड़ो कि यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? ओवर द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। ठीक, द राइबोसोम्स दैट आर फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। एंड ये कौन है? हमने पढ़ रखा है माइटोकॉन्ड्रिया को भी और क्लोरोप्लास्ट को भी। तो वहां पे ऑलरेडी मेंशन्ड है कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर द ऑर्गेनेल्स विच आर सेमी ऑटोनॉमस बिकॉज दे कंटेन देयर ओन DNA एंड ओन राइबोसोम्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स इन तरह के ऑर्गेनेल्स के अंदर पाए जाते हैं उन्हें ऑर्गेनेल राइबोसोम्स कहते हैं। ओके, तो बात यह है कुल मिला के कि जो राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे एज अ साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स पाए जाते हैं, दे आर ऑफ विच टाइप? ATS type. And the ribosomes that are found within organelles of the eukaryotic cell are 70S type. S stand for Swedberg unit as we said recently. तो क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में ATS और ऑर्गेनेल्स के अंदर 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, हम यहाँ कहते हैं कि 70S राइबोसोम इज कॉमन टू बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल, राइट। बट जो ATS टाइप का राइबोसोम है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में ATS टाइप का राइबोसोम कभी नहीं पाया जाता। तो इट इज एन एक्सक्लूसिव टू यूकैरियोटिक सेल। S always stand for Swedberg unit. Is it okay? Now each functional ribosome, that is 70S and ATS, has two subunits. ठीक है ना, हर फंक्शनल राइबोसोम में मतलब 70S और ATS राइबोसोम में दो सब यूनिट्स होते हैं। कौन से? तो वन मेजर
एंड अदर माइनर। डेंसिटी के हिसाब से उन सब यूनिट को मेजर एंड माइनर सब यूनिट कहते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि दोनों फंक्शनल राइबोसोम्स के रेस्पेक्टिव सब यूनिट्स मेजर और माइनर कौन से हैं। तो एक देखो, 80S राइबोसोम एक तरफ लिखते हैं हम और 70S राइबोसोम दूसरी तरफ। टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन एक साथ दोनों को लिख लेते हैं। ठीक, एक तरफ हम मेजर सब यूनिट और दूसरी तरफ माइनर सब यूनिट। सब यूनिट मतलब पार्ट, मेजर सब यूनिट एंड माइनर सब यूनिट। ठीक, अब 80S राइबोसोम का मेजर सब यूनिट होता है 60S, जबकि माइनर सब यूनिट होता है 40S। जबकि 70S राइबोसोम का तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से 50S और 30S। अब यहाँ पे एडिशन मत करने लग जाना, ये मैथमेटिक्स के फॉर्मूला के हिसाब से काम नहीं चलता कि 60 + 40 तो 100 होता है, फिर 80 कैसे, या 50 + 30 तो 80 होता है, 70 कैसे। देखो ये सब यूनिट्स है, इनकी इंडिविजुअल डेंसिटीज है 60 और 40, लेकिन जब ये जुड़ जाते हैं और फंक्शनल बन जाते हैं तो इनकी कंबाइंड डेंसिटी कम होकर हो जाती है 80S। वैसे ही ये इनकी इंडिविजुअल डेंसिटी है, जब ये कंबाइन होते हैं तो इनकी कंबाइंड डेंसिटी हो जाती है 70S। तो हम बोलते टाइम हमेशा कैसे बोलेंगे कि मेजर सब यूनिट ऑफ द 80S राइबोसोम इज 60S एंड माइनर वन इज 40S, जबकि मेजर सब यूनिट ऑफ 70S राइबोसोम इज 50S while minor is 30S. Remember this. Now, ये दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मटेरियल कि राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स, मतलब मेजर और माइनर सब यूनिट, चाहे वो 80S हो या 70S राइबोसोम हो, इन सब यूनिट्स को जोड़ने के लिए कौन सा मेटल आयन बहुत ज़रूरी होता है। सारी इंफॉर्मेशन मैं यहीं पे लिख रहा हूँ ताकि एट अ ग्लांस समझ में आए। क्वेश्चन वाइज ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैग्नीशियम आयंस और मैग्नीशियम कैटायंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू यूनाइट the major and minor subunits of both types of ribosomes, that is 60S and 40S or 50S and 30S। इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन सा आयन चाहिए? मैग्नीशियम आयन, Mg नॉट Mn, मैंगनीज नहीं, मैग्नीशियम। ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब होता क्या है, जब सेल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रही होती तब राइबोसोम अपने फंक्शनल फॉर्म में नहीं होता, उसके सब यूनिट्स अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, और जब भी उस सेल को प्रोटीन सिंथेसिस करवाना होता है दीज सब यूनिट्स कम टुगेदर, ओके, टू फॉर्म फंक्शनल राइबोसोम। हाउ दे कम टुगेदर? सो आंसर इज विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयंस these subunits come together and form functional ribosome that will carry out protein synthesis process for a cell. Is it okay? So that's the logic behind this data. Now, as we said earlier that each ribosome is a naked ribonucleoprotein particle, means हर राइबोसोम में या राइबोसोमल सब यूनिट में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक है आरआरएनए और दूसरा है प्रोटीन। तो हम प्रोटीन को तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि उनमें बहुत वैरायटी है, लेकिन क्वेश्चन एक आता है आरएनए के टाइप पे। हर सब यूनिट का एक अपना यूनिक आरआरएनए है जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन्हें हम यहाँ पे मेंशन करते हैं क्योंकि वो ज़रूरी चीज़ है और आपको पता होनी चाहिए। 60S सब यूनिट ऑफ द 80S राइबोसोम कंटेन 28S rRNA. Okay, the major rRNA present in 60S subunit of 80S ribosome is 28S rRNA, जबकि minor subunit of the 80S ribosome, that is
40s subunit contain 18s rRNA as a principal rRNA in it. ओके उसी तरह से 50s सब यूनिट एंड 30s सब यूनिट के लिए भी हमें लिखना पड़ेगा 70s राइबोसोम के, तो ये रेस्पेक्टिवली है 23s rRNA एंड 16s rRNA. ओके, तो लुक एट दिस डेटा. दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा विच इज वेरी यूजफुल फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग. दो फंक्शनल राइबोसोम्स है 80s 70s. हर एक फंक्शनल राइबोसोम्स के फर्दर काउंटर पार्ट्स मेजर माइनर, मतलब मेजर फॉर 80s इज 60s, मेजर फॉर 70s इज 50s, माइनर फॉर 80s इज 40s, माइनर फॉर 70s इज 30s. Both subunits in both the functional ribosomes unite with the help of magnesium ions, and the major rRNA present in respective subunits are like 60s के लिए 28s, 40s के लिए 18s, 50s के लिए 23s, 30s के लिए 16s. These are the major rRNAs present in respective subunits of the ribosomes. Just have a proper look at this data before we go further. Okay, now only two remaining things. First is site for ribosome formation in यूकैरियोटिक सेल्स. ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए पॉइंट वाइज फैक्ट वाइज हम यहाँ पे ले रहे हैं कि साइट फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन इन यूकैरियोटिक सेल इज कंसिडर्ड एज न्यूक्लियोलस. अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल के अंदर राइबोसोम कहाँ बनता है या राइबोसोम्स के फॉर्मेशन की साइट कौन सी है, तो यू ऑलवेज गो फॉर द आंसर न्यूक्लियोलस. आई एम राइटिंग एंड सेइंग न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस नहीं. Nucleolus is a region or area within nucleus. So remember this. And remaining one more fact is, I am writing it here. In prokaryotic cell, ये हो चुका है वैसे. In prokaryotic cell, many ribosomes are found attached to single mRNA. Structure formed is called as पॉलीराइबोसोम्स. ये हो चुका है, फिर भी एक बार राइबोसोम से रिलेटेड है तो लिख दिया. ओके, अब ओवरऑल राइबोसोम दिखता कैसे है, तो माइक्रोस्कोप में राइबोसोम जैसे भी दिखता हो हम उसे हमेशा इस तरह से ड्रॉ करते हैं. मेजर सब यूनिट, माइनर सब यूनिट. अगर वो 80s राइबोसोम है तो मेजर हुआ 60s, माइनर हुआ 40s. और अगर 70s राइबोसोम है तो 50s एंड 30s. दोनों को जोड़ने के लिए कॉमन चीज़ जो चाहिए होगी वो Mg ट्वाइस पॉजिटिव आयन. और ये राइबोसोम इस रूप में, मतलब फंक्शनल फॉर्म में कौन सा मेन काम करते हैं, नो डाउट प्रोटीन सिंथेसिस, हैंस कॉल्ड प्रोटीन फैक्टरीज. तो ये जो सारा डिस्कशन हमने अभी किया इस पिछले आधे पौन घंटे में, वो एक बहुत ही ज़रूरी डिस्कशन था. बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हमने हाईलाइट किया, पढ़ा, जो भी राइबोसोम्स के लिए पढ़ना ज़रूरी था. ठीक, द नेक्स्ट टाइम वी मीट वी विल discuss cytoskeletal structures that are unique to eukaryotic cells. Okay, and later we will move on to discussion of flagella and cilia in upcoming classes. So we are near to the end of this chapter, okay, where we have discussed most of the things and remain to be discussed some more things about eukaryotic cell. So I hope you are understanding all the things that we are discussing
In case of any query, you can always ask through channels that we have created. Okay, so thank you for today. We will meet again in next class.